दफन कर सकता हूं सीने में तुम्हारे राज को, दफन कर सकता हूं सीने में तुम्हारे राज को, और तुम चाहो तो अफसाना बना सकता हूं। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों को ईद उल मिलादुन नबी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी पूजा यानी लक्खी पूजा भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज शरद पूर्णिमा भी है। सभी त्योहारों के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आइए आपको एक अहम खबर से जोड़ते हैं। हमारे पास एक खबर आ रही है। आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो ने आज लोकसभा से अपना इस्तीफा दे दिया। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आवास पर जाकर बाबुल सुप्रियो ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। पिछले दिनों उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन पकड़ लिया। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने उन्हें पार्टी का झंडा पकड़ाया, उनका स्वागत किया पार्टी में। इसके बाद उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से थोड़े दिनों के लिए मोहलत ले ली थी और आज उन्होंने बाजाबता लोकसभा से अपना इस्तीफा दे दिया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति भी अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 7 साल मैंने भाजपा को दिए और भाजपा के लिए मैंने मेहनत की, अब पार्टी को छोड़ते हुए मन व्यथित भी हो रहा है। इस तरह की बातें बाबुल सुप्रियो ने कही। आप स्क्रीन पर बाबुल सुप्रियो की तस्वीर देख सकते हैं। आज आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता और आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी विकास के मुद्दे को हमेशा उठाते रहे हैं। आज भी अपने आवास पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने एक बार फिर से आसनसोल के विकास के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि आसनसोल के विकास को लेकर उन्होंने हमेशा पश्चिम बर्धमान के जिलाधिकारी को पत्र दिया है और आगाह किया है। कई बातों को लेकर उन्होंने आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के संदर्भ में भी अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को आसनसोल के विकास को लेकर एक मंच पर आना होगा, सभी को इस बारे में सोचना होगा। অন্যান্য শহর যেরকম প্ল্যানিং করে তৈরি হচ্ছে সেই শহরগুলোর সমস্যা কম, কিন্তু যেখানে আনপ্ল্যান্ড সিটি থাকে তার সমস্যা অনেক বেশি থাকে। স্বাভাবিকভাবে আমাদের আসানসোলেও একটা আনপ্ল্যান্ড সিটি যেহেতু অনেক সমস্যা আছে, কিন্তু ইন টার্মস অফ এরিয়া আসানসোল হলো আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন যে এরিয়া সেটা ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন চেয়েও ইন টার্মস অফ এরিয়া আমরা বলবো। তার সঙ্গে জেলা পরিষদের যে অংশ আছে অন্যান্য অংশকে যদি আপনি সংযুক্ত করেন তার খুব বড় শহর। রেভিনিউ জেনারেশনের ক্ষেত্রে এই শহরের একটা সুনাম আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে। মানে যে কয়েকটা শহর হাইয়েস্ট রেভিনিউ জেনারেট করে আসানসোল তার মধ্যে অন্যতম। স্বাভাবিকভাবে এই রেভিনিউ তো আসানসোলের মানুষরাই দেয়। আসানসোলের মানুষ দেয়, কুলটির মানুষ দেয়, জামুরিয়ার মানুষ দেয়, পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ দেয়, রানীগঞ্জের মানুষ দেয়, বারাবনের মানুষ দেয়, বার্নপুরের মানুষ দেয়। তো যারা এই রেভিনিউ দিচ্ছে, এই রেভিনিউ দেওয়ার পরিবর্তে তারা তো পরিষেবাটাও চাইবে, কিন্তু যেহেতু এই শহর আনপ্ল্যান্ড সিটি সে পরিষেবা আমরা কিন্তু দিতে পারছি না। আমি কাউকে দোষারোপ করছি না। যদি একটা প্ল্যান্ড সিটি যদি আমরা তৈরি করতে পারি তাহলে এই সমস্যাগুলো হবে না। এবং এটা মাথায় রেখেই 11/10 আমরা এই জেলার যিনি জেলা শাসক তাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। সেখানে রিকোয়েস্ট করেছি আমরা যে আপনি আসানসোল কর্পোরেশন, পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদ, এডিডিএ, শিক্ষা দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর, পিডব্লিউডি, ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট, ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট, ইসিএল আছে, ইসকো আছে, সবাইকে নিয়ে সামগ্রিকভাবে সবাইকে নিয়ে আসানসোলে কি কি প্রয়োজন আছে তার একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে সরকারের কাছে অ্যাপ্রুভালের জন্য পাঠান। আসানসোলকে যদি বাঁচতে হয় তাহলে আগামী দিনে আসানসোলের জন্য একটা মাস্টার প্ল্যানের প্রয়োজন আছে। ডিএম সাহেবের কাছে কোনো উত্তর না পাওয়ার পর এখান থেকে যারা যারা জনপ্রতিনিধি হয়েছেন যে দলেই হোক না কেন, সাংসদ থেকে নিয়ে মন্ত্রী থেকে নিয়ে বিধায়ক অব্দি যারা আছেন সবাইকে আমরা 19 তারিখ পরবর্তী ক্ষেত্রে 16 তারিখ তাদেরকে আবার আমরা চিঠি দিয়ে রিকোয়েস্ট করেছি যে প্লিজ আপনারা জনপ্রতিনিধি, আসানসোলের মানুষ আপনাদেরকে নির্বাচিত করেছে, এই শহরের প্রতি আপনারা অলরেডি করছেন, কিন্তু আরো কিছু দায়িত্ব আছে এবং এই আসানসোল শহর বাঁচলেই আমরা সবাই বাঁচবো। এই শহরটা যদি না থাকে তাহলে কাকে নিয়ে রাজনীতি? সব রাজনীতি তো এই অঞ্চলের মানুষকে নিয়ে। এই অঞ্চলের মানুষের জীবন যদি বিপন্ন হয় তাহলে কাকে নিয়ে রাজনীতি করবো? রাজনীতি করার আরো অনেক সময় আসবে।
কিন্তু আমরা সবাই মিলে রিকোয়েস্ট করছি আমাদের এই জনপ্রতিনিধিদেরকে যারা জিতেছেন ভোটে যে প্লিজ আপনারা এটা নিয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করুন, সমস্ত ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে একটা মাস্টার প্ল্যান, কম্প্রিহেন্সিভ মাস্টার প্ল্যান যেখানে আসানসোলে সবকিছু থাকবে, সব চিন্তা ভাবনা থাকবে, সেটা তৈরি করুন এবং রাজ্য সরকারকে দিয়ে সেটা অ্যাপ্রুভ করান। সেখানে যদি কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো ভূমিকা থাকে, অনেকে হয়তো বলবে যে কেন্দ্র সরকার করছে না, কেন্দ্রীয় সরকারের যদি কোনো ভূমিকা बाबू थोड़ा बैठ जाओ। आल्टो हाथों नीचे करना। अभी हमने आपको दिखाया कि आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत की। अपने आवास पर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेतागण भी मौजूद थे। तमाम नेताओं की मौजूदगी में जितेंद्र तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत की। इसके बाद जब हमारे संवाददाता ने आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी से मुलाकात की और उनसे जानना चाहा कि इस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की वजह से यहाँ के तमाम उपक्रम बंद हो रहे हैं, तमाम इंडस्ट्री बंद हो रहे हैं। उन्होंने कई इंडस्ट्री का जिक्र भी किया। आइए सुनते हैं कि उन्होंने आखिर क्या कहा। আজকে প্রেস কনফারেন্স বললেন কি আসানসোল পুরো পিছিয়ে চলে গেছে, এটা নিয়ে কি বলবেন? দেখুন, ওনার এই প্রস্তাবটাকে আমরা সাধুবাদ জানাই। আমরা এটা চেষ্টা করেছিলাম, আমাদের রাজ্য সরকার চেষ্টা করছে এবং আসানসোল তো বঞ্চিত হচ্ছেই দিন দিন। কয়লা খনি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, রেল বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, রেলের জমি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, হিন্দুস্তান কেবল বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, ইসকো সেল থেকে সেলে চলে গেল। এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে বিভিন্ন রকম অসুবিধার মধ্যেখানে তো আসানসোল শিল্পাঞ্চল চলছেই। তারপর জিএসটির চাপ, তারপর পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি, গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি, এই সমস্তর মধ্যেখান দিয়ে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রকমভাবে সাফারার হচ্ছে। তবে আসানসোলের মানুষের কথা ভাবার জন্য ওনাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই, কারণ উনি ওটা দায়িত্ববোধের মধ্যেখানে পালন করেছেন। তো আমাদের মন্ত্রী মলয় ঘটক রয়েছেন, এডিডিএর চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন, যারা আমাদের নেতা, এবং তৃণমূলের অন্যান্য যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ রয়েছেন তাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা নিশ্চয়ই করব এই ব্যাপারটা নিয়ে। এবং আমাদের যারা রাজ্যের আধিকারিকরা রয়েছেন তারা এটা নিয়ে অলরেডি ভাবতে শুরু করেছেন। মানুষের যাতে আর্থিকভাবে উন্নতি হয় সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন প্রজেক্টের মধ্যেখানে আসানসোলকে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। তো আমরাও চেষ্টা করব যে মাস্টার প্ল্যানের মধ্যেখানে কিভাবে গাড়ুই নদী, নুনিয়া নদী এই সমস্ত সংস্কার হয়, বড় বড় ড্রেনগুলো সংস্কার হয়, আমরা তার চিন্তা ভাবনা করব। তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও আমরা জনগণকে অনুরোধ করব যে নদীর যে পরিধি, সেই নদীর পরিধিটাকে পরিধির মধ্যে রাখতে হবে, রাস্তার পরিধির মধ্যে রাখতে হবে। যত্রতত্র যে যেখানে খুশি বসে গিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশকে নষ্ট করা চলবে না। প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট করার জন্যই কিন্তু আমরা বিভিন্ন রকমভাবে বঞ্চিত হচ্ছি। देश भर में आज ईद मिलादुन नबी का त्यौहार मनाया गया। हर साल इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद की जयंती के मौके पर इसे मनाया जाता है। इसे वारा वफ़ात भी कहा जाता है और वारा वफ़ात के मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों में कई तरह के कार्यक्रम हुए। लोगों ने आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ अपने पैगंबर को याद किया। हम आपको लिए चलते हैं बंगाल के आसनसोल शहर। आसनसोल शहर में भी वारा वफ़ात के मौके पर कई तरह के कार्यक्रम हुए। यहाँ ह्यूमनिज्म नामक एक सामाजिक संस्था की मदद से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हटन रोड मोड़ इलाके पर यहाँ आसनसोल बस स्टैंड के ठीक सामने ये कार्यक्रम हुआ और यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे पश्चिम बंगाल सरकार के कानून मंत्री मलय घटक। उनकी मौजूदगी में यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उनके साथ दूसरे नेतागण भी मौजूद थे।
आसनसोल में जिस तरीके से काम करते आए हैं, आप लोगों के सामने है। मैं दादा का शुक्रगुजार हूँ। दादा ने हर तरीके से हर अपने तरफ से उन्होंने जो मदद किया काम करते हैं। इस मंच पे उपस्थित डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल सैयद अफरोज साहब भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं और हमारे जनाब कादरी साहब भी शामिल हैं। हमारे दादा देखिए जिस तरह से गरीबों को ख्याल रखते हैं, हर जगह ख्याल रखते हैं। आज भी आप लोगों के सामने है श्री मनाई घटक जी, हर गरीब, हर अमीर, हर तरह के लोगों का साथ देते हैं। मैं दादा का शुक्रिया अदा करना चाहूँ। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थ एनिवर्सरी है, तो आज पूरी दुनिया जो है प्रॉफेट मोहम्मद का जो मैसेज है हम लोग उसको हर एक लोगों तक, हर धर्मों के लोगों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि प्रॉफेट मोहम्मद ने सबसे पहले टू सर्व द ह्यूमैनिटी के बारे में जो बात किया था, सारी इंसानियत के बारे में बात किया था। और जो प्रॉफेट मोहम्मद जो इस दुनिया में आए उन्होंने सारी इंसानियत के लिए काम किया और सारे लोगों के लिए काम किया। वो कोई धर्म के लिए काम नहीं किया, वो बल्कि उनके सामने सारे इंसान जो है, सारे धर्म के लोग जो है उनके साथ जो है उनको गॉड का जो मैसेज था उनको पहुंचाया और लोगों के अच्छाई के लिए इस दुनिया में हम लोग किस तरीके से अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकते हैं उसके लिए हम लोगों को सारा जो है शेड्यूल बताया। तो आज हम लोग प्रॉफेट मोहम्मद का बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं आसनसोल के सारे लोग, और हम इस मौके पे सारे पूरी दुनिया के लोगों को, अपने पश्चिम बंगाल के लोगों को, सबों को हम जो है कांग्रेचुलेशन, मुबारकबाद देना चाहते हैं। झारखंड के जामताड़ा जिले में नाला प्रखंड की सड़कें बेहद खराब हालत में है। सांगा जुड़िया और सिंदूर कुड़िया गांव से गुजरने वाली जो सड़क है उसका हाल बेहद बुरा है, और आगे जो जुड़िया पुल की तरफ जो रास्ता जाता है, जुड़िया पुल की हालत भी बेहद खराब है, और हालत खराब होने की वजह से आम लोगों को काफ़ी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस संदर्भ में बार बार हमारे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे थे और यहाँ के ग्रामीणों की बार बार शिकायतें आ रही थी खास बात इंडिया के कार्यालय को। इसके बाद हमारे प्रतिनिधि ने यहाँ जाकर यहाँ के लोगों से बातचीत की, और बातचीत करने के बाद ये देखा, ये जाना कि यहाँ की सड़कें बेहद खराब हालत में हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमारे संवाददाता गौतम ठाकुर ने यहाँ जाकर यहाँ की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की और यहाँ के ग्रामीणों से बातचीत भी की। बहुत ही ख़राब हो चुका है। ये आपका सागजुया से चित्ररंजन जाता है और सागजुया से रुनाकड़ा जाने वाला रास्ता है, जो बारिश के कारण यहाँ टूट गया है ब्रिज, जिसके कारण आने जाने का बहुत ही समस्या हो रहा है। तो हम झारखंड सरकार से निवेदन करेंगे कि ये रोड जल्द से जल्द बने और सागजुया के आदमी को रुनाकड़ा घाट जाने में और चित्ररंजन जाने में सुविधा हो। ये सूचना तो अभी किसी को दिया गया नहीं है, लेकिन यहाँ का जो विधानसभा अध्यक्ष है वो तो यहाँ आते नहीं है, कुछ काम भी नहीं करते हैं, जिसके कारण हम लोग का ये ब्रिज बहुत ही पुराना हो चुका है, बहुत ही जर्जर हो चुका है और बरसात के कारण पूरा टूट गया है, जो सागजुया के आदमी को आने जाने में बहुत ही समस्या का करना पड़ रहा है। रोड का बहुत बड़ा समस्या है क्योंकि बहुत गड्ढा है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोगों को। चित्ररंजन और रुनाकड़ा घाट रास्ता है इधर, और इधर नाला जाने का रास्ता, सब लोगों का दिक्कत हो रहा है हम लोग गाँव का। और इधर बहुत गड्ढा है, इसलिए कि गिरने का बहुत दिक्कत हो सकता है। कभी अभी रात में कोई आएगा तो
गार्ड घुस जा सकता है, इसलिए हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में भी याद किए गए हजरत मोहम्मद वारा वफात के मौके पर यहाँ कई तरह के कार्यक्रम भी हुए। हमारे पास निरसा विधानसभा क्षेत्र से खबर आ रही है। हमारे संवाददाता प्रमोद झा ने खबर भेजी है कि निरसा विधानसभा क्षेत्र में भी याद किए गए शिद्दत से हजरत मोहम्मद और उनकी जयंती के मौके पर यहाँ कई तरह के कार्यक्रम हुए। हमारे पास ये वीडियो आ रहा है कुमार धुबी के शिवलीबाड़ी इलाके से। शिवलीबाड़ी इलाके में भी हजरत मोहम्मद को याद किया गया, फूलों की बारिश की गई। यहाँ जरूरतमंदों में भोजन बांटे गए और श्रद्धा और अकीदत के साथ याद किए गए हजरत मोहम्मद वारा वफात के मौके पर। हमारे संवाददाता ने बातचीत की निरसा के पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी और मौलाना मकसूद से। आज ईद मिलादुन नबी है, मनाने का क्या उद्देश्य है? आज की तारीख बड़ी अहम तारीख है और बड़ी मुतबर्रक तारीख है। आज ही की तारीख में हमारे आका मौला जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। उन्हीं की आमद की खुशी में हम और सारे मुसलमान जुलूस की शक्ल में उनकी बारगाह में खराज अक़ीदत और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी बारगाह में ये खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और ये भी एक ज़िक्र मिलाद है। और ज़िक्र मिलाद चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान पाक के ज़रिए बहुत सारी आयतों के ज़रिए ज़िक्र मिलाद फरमाया है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र मिलाद फरमाया है तो हम भी इस जुलूस के ज़रिए ज़िक्र मिलाद ही कर रहे हैं। ज़िक्र मिलाद चाहे महफिल पाक के ज़रिए हो, चाहे जलसों के ज़रिए हो, चाहे जुलूस के ज़रिए हो, ये ज़िक्र मिलाद है। और ज़िक्र मिलाद हर हाल में बाइस से सवाब, बाइस से रहमत, बाइस से बरकत और मुस्तहसन और मुस्तहब है। इसीलिए हम जुलूस जो किसी आदमी इंसान के लिए अच्छा सोचे, ये पैगाम, ये मैसेज अल्लाह के रसूल ने पूरी दुनिया को दिया है। और आज भी भाई चैलेंज कहता हूँ, अगर दुनिया से आतंक को मिटाना हो, दुनिया में अमन और शांति पैदा करना हो, तो मेरे रसूल का पैगाम अपने सीनों में बसाए और हर इंसान एक इंसान के लिए बेनिफिटेड, फ़ायदामंद और मुफीद हो इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया। आज ईद मिलादुन नबी है, इसके लिए क्या? सबसे पहले तो ईद मिलादुन नबी के अवसर पर तमाम हमारे मुसलमान भाई और अल्लाह ताला सबको आशीर्वाद करें, सबको खुश रखें और लोगों की जो दुख दर्द है उसको दूर करेगी हमारी कामना। भगवान सबकी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर से भी हमारे पास एक खबर आ रही है। बराकर के बेगुनिया मोड़ इलाके पर बजरंग दल और विहिप की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यहाँ विरोध प्रदर्शन किया गया और ये कहा गया कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं किया जाता है तो उसी तरह से प्रदर्शन किए जाते रहेंगे, आंदोलन किए जाते रहेंगे। बांग्लादेश की सरकार से ये मांग की गई कि अविलंब हिंदुओं पर अत्याचार बंद किया जाए।
आज हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हमारा हिंदू भाई को मारा गया मोदी द्वारा हमारा धर्म का जा रहा है। बांग्लादेश में उनके विरोध में लोग आज को शांतिपूर्वक एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए हम आप सभी से विनती करते हैं मेरे भाइयों कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसका लेकर मैंने की शांतिपूर्वक ही प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे किसी को भावना को ठेस न पहुँचे, इसलिए हम लोग आए हैं। भारत माता के, भारत माता के, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे 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 भारत माता के। आसनसोल के बर्नपुर इलाके में भी इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद की जयंती मनाई गई। इस मौके पर करीम डांगा इलाके में यहाँ ज़रूरतमंदों को भोजन कराया गया। इस मौके पर यहाँ के लोग इकट्ठे हुए। यहाँ के लोगों ने इकट्ठे होकर श्रद्धा और अकीदत के साथ याद किया हज़रत मोहम्मद साहब को और फूलों की बारिश की गई। यहाँ ज़रूरतमंदों को भोजन भी कराया गया। इस मौके पर इस इलाके के समाज सेवी मुर्तज़ा खान और उनके सहयोगियों की भूमिका काफ़ी अहम रही। बिहार के भागलपुर से हमारे संवाददाता ने खबर भेजी है कि बिहार के भागलपुर में भी ईद मिलादुन नबी के मौके पर कई तरह के कार्यक्रम हुए और इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद काफ़ी श्रद्धा के साथ, काफ़ी अकीदत के साथ याद किए गए। हमारे संवाददाता तनवीर हुसैन और जयंत शर्मा की ये खास रिपोर्ट। चलो एक ही नंबर पर है ना। आपका नाम? रेहान नवाजी साहब, ये जो ईद मिलादुन नबी है ये किस लिए मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, जरा आप जनता को समझाएं। हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को बेसिकली अरबी में मिलाद कहा जाता है। उनकी पैदाइश के दिन को ईद मिलादुन नबी की तरह हम लोग मनाते हैं, ईद की तरह मनाते हैं, क्योंकि इस्लाम जो है हमारा मजहब सिर्फ और सिर्फ उनके ही कदमों से, उनके ही ऊपर से चला है। हर चीज़ हमारा जो भी है उनसे ही स्टार्ट होता है, इसलिए उनकी पैदाइश के दिन को हम लोग इतनी धूमधाम से मनाते हैं। ये मौलाना चक के गेट पे मैं खड़ा हूँ। ईद मिलादुन नबी का पैदाइश का दिन है। आज हर्षोल्लास के साथ सारे लोग ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। हमारे सहयोगी जयंत शर्मा के साथ तनवीर हुसैन, खास बात इंडिया के। मैं
जिला भागलपुर के मौलाना चक में रेलवे लाइन पे खड़ा हूँ और ईद मिलादुन नबी का जलसा अभी खत्म हुआ है। सारे लोग ईद मिलादुन नबी के जलसे से वापस जा रहे हैं। यहाँ पे काफी तरह का क्राउड है। मुजाहिदपुर थाने ने बहुत अच्छा यहाँ पे इंतजाम कर रखा है। अभी मैं आपके इंस्पेक्टर साहब हैं मिस्टर LM शर्मा जी, मैं उनसे बात करता हूँ। सुरक्षा संबंधी आप लोगों ने क्या क्या किया, क्या क्या कर रहे हैं? ट्रेन के आते जाते समय हम लोग दोनों तरफ से घेर के रखेंगे ताकि किसी पब्लिक के साथ कोई हादसा नहीं हो। उस पर विशेष ध्यान हम लोग का विशेष फोकस था और जो भीड़ को नियंत्रित भी रखें, कहीं कोई किसी तरह के हादसा नहीं हो, विशेष फोकस हम लोगों का रहा। शांति संपन्न हुआ।